Welcome, students, to a new lecture of our series Electricity and Magnetism, your paper number second. Today, we are discussing about a new topic named divergence. Before talking about this new topic, we are summarize that we are studied in past 4 or 5 days. We are studied about the vectors, the scalars, additions of vector, multiplication of vector, the dot product of a vector, the cross product of a vector, vector triple product, scalar triple product, and a new vector operator named Dale. And by the operation of Dale, we are studied about the new feature, new mathematical term named gradient. Today we are discussing about the divergence. Divergence simply is about the phenomena that something is diverges to the point in question. By definition, you can see now on your screen. Here is we have divergence. डाइवर्जेंस बाय डेफिनेशन जाएं तो किसी भी कोई भी आपके पास अगर कोई वेक्टर है से v इज अ वेक्टर, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं. यू ऑल नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देन इफ यू टुक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऑपरेटर डेल with a vector quantity, say in this case velocity, then you have to be write del dot vector v. This mathematical term signifies the operation of divergence. By mathematics, del, you all know that operator del is defined as I del by del x plus j del by del y plus k del by del z, and dot product with velocity. Velocity have as well as operator have three components in three mutually perpendicular axes: I vx, I j vy, and k vz. You are very familiar about the dot product of two vectors, that a dot vector b gives you a b cos theta. But in this situation we have already divided it in its component, then dot product of these two vector quantity gives us a scalar. See here, this is a scalar quantity, no sense of direction, it have only magnitude. You can see on your screen here, this quantity has no sense of direction, so it is a clearly a scalar. So the operation of divergence gives us essentially is that when a vector operator operates on a vector gives us a scalar quantity, or more conveniently we can say that a vector dot vector gives us a scalar. As you can see, a dot b vector gives us a b cos theta. This is a scalar quantity, means vector dot vector gives us a scalar quantity which signify clearly the operation of a dot b, vector a dot vector b. Vector a dot vector b gives us a scalar quantity. A is the magnitude, a is magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, and cos theta is the angle between these two vectors when they place tail to tail. You all know that. Now
hence what is divergence? Hence divergence of a vector function v is itself a scalar quantity. We cannot define the divergence of a scalar quantity, which is a meaningless concept. Means अगर आप ये कहें कि डेल डॉट a vector quantity, say a is a vector, then it gives definitely a scalar quantity, and this is the signification of divergence mathematically. But if you want to take a dot product of a vector operator with a scalar quantity, say t, then this is nothing. This is meaningless concept. This has no meaning. Okay, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता. मीन्स आप किसी भी वेक्टर ऑपरेटर का और मोर कन्वेंटली वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी स्केलर के साथ नहीं ले सकते. ठीक है, दिस इज द मीनिंगलेस कंसेप्ट. हाँ, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने तो पिछली बार ऐसे किया था, जब हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेडियंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर होता है डेल, और उसको हम किसी स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट करते हैं. Now you can listen this language very carefully. Operating, not dot product, means this two operation has different meaning. This one and del dot t. These are two different concepts. Very clearly in your mind set these two concepts. We cannot dot the product of a vector quantity with a scalar quantity. If we want to take a dot product, then definitely we have to be with two vector quantity. Okay, now you can see that when a vector operator operates on a scalar quantity which gives a gradient, and we are talking about this concept, that vector del, you can see now your screen, these two operations. Yes, this one, that vector del operates on t, gives us gradient. Gradient means if you want the maximum change in t, magnitude is calculated by the maximum change in t, and direction is calculated by the direction in which there exists maximum change in t. एक एग्जांपल के द्वारा अभी आपको सिखाया गया था कि एक अगर आप किसी हिल साइड पे खड़े हैं तो दैट्स यू ऑल नो. बट द हियर इज आवर कंसेप्ट इज दिस ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेशन. तो दोनों डिफरेंट हैं, आप बड़े ध्यान से इनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट करेंगे. ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं. मीन्स अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक मैथमेटिक्स है. मीन्स आपको सिंपली बोल दिया गया है कि एक वेक्टर है हमारे पास डेल, आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए किसी वेक्टर क्वांटिटी के से, एनी वेक्टर क्वांटिटी, नॉट वेलोसिटी, एनी वेक्टर क्वांटिटी से डेल डॉट वेक्टर ए. यू कैन टेक डेल dot vector E. E is the electric field intensity, which is a vector quantity. So this is not particular that you have to be take velocity always. You have to take any vector quantity. So you use this operation very well sense, and obtain the divergence of a vector quantity. Now geometrically और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस मीन्स इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, आप बोल क्या रहे हैं. अगर आप कह रहे हैं कि व्हाट इज, देन अगर हम देखिए एक बात सुनिए कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मीन्स हम कहते हैं ए डॉट बी, यहां हम कह रहे हैं डेल डॉट ई, हम यहाँ कहते हैं ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है. मीन्स इट सिग्निफाइज बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बट इट इज नॉट सिग्निफाइज बाय द डॉट ऑफ टू वेक्टर्स. इट इज नॉट डॉट ऑफ टू वेक्टर. ऑलवेज मैथमेटिकली you can say that, but physically
You cannot say that. You can see on your screen. Geometrically, the name divergence is well chosen. बहुत अच्छा नेम चूज किया गया है. For del dot v is a measure how much the vector spreads out, फैलता है, diverges from the point in question. You can see 3 figures on your screen. The first one, the second one, the third one. Okay, now you can easily understand the meaning of divergence. Is talking about first this figure, you can see that there is a point in the middle which is very small. You can see here on your screen. That is the point in question. मीन्स ये जो फ्लक्स बाहर आ रहा है, अभी ये वर्ड भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप इसको मानिए कि ये एक फ्लक्स, एक अमाउंट है. ये एयर भी हो सकती है, ये वाटर भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है जो भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें. तो आप समझिए इस बात को कि इफ समथिंग इज डाइवर्जेस मीन्स coming out from a point, then you can say that this is the source of divergence. Means you can see, or you can say about this figure is that this figure has positive divergence. Means because direction of arrows is outward. सबकी आउटवर्ड डायरेक्शन आप देख लीजिए, किसी की भी, सबके आउटवर्ड, इधर से बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर. अंदर वाले एरोज देख लीजिए, बाहर की ओर, बाहर की ओर. सबकी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड. विच सजेस्ट दैट समथिंग इज स्प्रेडिंग आउट. यहां से कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, आउट फ्रॉम द पॉइंट इन क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे फाउंटेन को या किसी सोर्स को. फाउंटेन, फुवारा, सबने फव्वारा देखा होगा. तो फाउंटेन से पानी कैसे बाहर आता है? ऐसे बाहर आता है, और वो फिर ऐसे, जैसे मानो यहाँ फव्वारा है अगर, तो यहाँ भी पानी जाएगा, यहाँ भी पानी जाएगा, यहाँ भी पानी, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, और चारों तरफ ये पानी फैल जाएगा. तो ये जो सोर्स पॉइंट है बीच में, दिस द पॉइंट इन क्वेश्चन. मीन्स जिसके बारे में हम बात करें, सोर्स पॉइंट है ये. और जो बाहर आ रहा है, दैट इज दिस सोर्स पॉइंट हैज पॉजिटिव डाइवर्जेंस. सेकंड फिगर, दिस वन. हियर इज दिस पॉइंट इन क्वेश्चन. यू कैन इजीली सी दैट every arrow has an inward direction. अंदर की ओर है, सबकी डायरेक्शन देखिए, एरो की डायरेक्शन. नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये फिगर किसको दिखाता है? नेगेटिव डाइवर्जेंस, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एरोज इज इनवर्ड, विच सजेस्ट दैट समथिंग इज डाइवर्जेस इन, नॉट डाइवर्जेस आउट. ओके, एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं आप. वॉश बेसिन है या सिंक है? वॉश बेसिन सबके घरों में होगा, सिंक सबके घरों में होगा. जब वॉश बेसिन में और सिंक में पानी भर जाता है तो पानी नीचे की तरफ आता है. मीन्स ऊपर की तरफ, फाउंटेन की तरफ बाहर नहीं निकलता, बल्कि सिंक या वॉश बेसिन में पानी कहाँ जाता है? नीचे की तरफ. जो उसका पाइप है उसमें से निकल के फिर वो चाहे जहाँ भी जाए, लेकिन पाइप का जो उसमें छेद बना है, उससे वो पानी नीचे की तरफ होता है. मीन्स डाइवर्जेस इन, बाहर नहीं, स्प्रेड्स आउट नहीं होता, बल्कि डाइवर्जेस, नॉट डाइवर्जेस आउट, इट्स डाइवर्जेस इन. तो दिस फिगर सजेस्ट अस द source of negative divergence. And the third one, this figure, this one has arrow in this direction, and in this figure you cannot define a source point. आपके पास कोई भी सोर्स पॉइंट है ही नहीं है,
तो कैसे आप दिखा सकते हैं कि ये जो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, ये इतने सारे एरोज है, चाहे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि चाहे ये पानी है, चाहे ये एयर है, या तो फिर कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो वो सब अगर बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, यू कैन नॉट से अबाउट दैट। आप कैसे कह सकते हैं इन एरोज को देख के? आप कह सकते हैं कि ये अंदर अंदर की डायरेक्शन की ओर है या बाहर की डायरेक्शन की। जब आपको सोर्स पॉइंट ही नहीं पता, तो दिस फिगर हैज जीरो डाइवर्जेंस, इसके पास डाइवर्जेंस नहीं है, बिकॉज नथिंग इज स्प्रेडिंग आउट और इन। तो डाइवर्जेंस बेसिकली हमें क्या बताता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी फिनोमिना ऐसे हो कि कुछ बाहर आ रहा हो, और या फिर कोई फिनोमिना ऐसी है कि कुछ अंदर जा रहा हो, तो वो सोर्सेज होते हैं डाइवर्जेंस के। और देखिए इसको क्या होता है कि फिजिकली समझने के लिए हमें पानी सबसे अच्छा उदाहरण इसमें क्यों लगता है, जबकि पानी का जो एग्जांपल है हम देते हैं, बुक्स में भी आपको बहुत लिखा मिलेगा, बट दैट इज नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ डिफाइनिंग द डाइवर्जेंस पॉइंट, डाइवर्जेंस सोर्स। बिकॉज पानी को क्या होता है, पानी को हम फिजिकली देख सकते हैं। तो अगर फाउंटेन है, फवारा है, तो फवारे से पानी ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, तो हम कह रहे हैं हाँ भाई ये जहाँ से ये पानी बाहर आ रहा है, ये फवारा क्या है, एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ डाइवर्जेंस है। और दूसरी बात, सिंक को हम देखते हैं या तो फिर वॉश बेसिन को हम देख सकते हैं। वॉश बेसिन में क्या होता है, पानी बाहर की ओर अंदर की ओर जाता है, तो अंदर की ओर जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो वॉश बेसिन है ये क्या है, नेगेटिव सोर्स ऑफ डाइवर्जेंस है। और जब इस तरह की फिनोमिना है, जैसे कि किसी जैसे कोई नदी बह रही है, जैसे, तो उसमें ना तो आप ये कह पा रहे हैं कि ये पानी कहीं अंदर जा रहा है, ना ये कह पा रहे हैं कि ये पानी कहीं बाहर आ रहा है, तो आप वो क्या है, जीरो डाइवर्जेंस है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है उसका। ओके, तो इस सेंस में आप इसको समझ सकते हैं। दो बातें जो आपको इस टॉपिक में समझनी पड़ेगी, पहला है ये एरिया एज ए वेक्टर, एरिया एज ए वेक्टर, और दूसरी फिनोमिना या दूसरा कंसेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा वो है फ्लक्स। तो पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट एरिया एज ए वेक्टर। फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जो हम इन्फिनिटिजिबल एरिया लेते हैं उसको हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है, से आपके पास इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, और इसका आप एक इतना सा छोटा सा हिस्सा ले लें, छोटा सा हिस्सा ले लें, यू कैन सी दैट ये आपके पास एरिया है, और इसका इतना छोटा सा आप कोई हिस्सा ले लें, तो ये जो हिस्सा है इसको आप वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी इन्फिनिटिजिबल एरिया को हम फिजिक्स या मैथमेटिक्स में एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये वेक्टर है, एरिया एज ए, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ही यही है, एरिया एज ए वेक्टर, यानी एरिया को अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, वैसे एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हैं, आपने बहुत सारे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, पर हम कभी नहीं कहते वहाँ की एरिया एक वेक्टर है, नहीं, हम तो यूनिट्स लगाते हैं, से स्क्वायर मीटर, से स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, से एरिया ऑफ अगस्त्यमुनि इज इन अबाउट स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, एरिया इज नॉट ए वेक्टर। पर मैं आपको बोल रहा हूँ इन्फिनिटिजिबल एरिया, बहुत छोटा सा एक एरिया है, बहुत छोटा सा एक एरिया है, तो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, उसको हम एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्फिनिटिजिबल एरिया को, बहुत छोटा सा एक एरिया है हमारे पास, उसको हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर एरिया वेक्टर है तो उसके पास डेफिनेटली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और उसके पास डेफिनेटली डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी आप क्या कह पाएंगे, उसको एक वेक्टर कह पाएंगे। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास कोई वेक्टर एरिया इन्फिनिटिजिबल भी नहीं है,
तो भी आप उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं। से आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसकी एक आर्म 2 मीटर है, तो एरिया तो आप यहाँ भी निकाल, मैग्नीट्यूड तो आप इस एरिया का यहाँ भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? आर्म स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, बट वी आर इंटरेस्टेड अबाउट इट्स डायरेक्शन। वेक्टर्स की जब भी बात आप करेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए उसकी डायरेक्शन पे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर? बिकॉज स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से जो चीज़ अलग करती है वो उसकी डायरेक्शन ही है। तो वी आर फोकस्ड, वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, नाउ इफ वी आर लुकिंग फॉर एन इन्फिनिटिजिबल एरिया, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर आप कि एरिया की डायरेक्शन ऐसी है जैसे आपको फर्स्ट वाली फिगर में दिख रही होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया की, जो भी आप इन्फिनिटिजिबल एरिया कंसीडर करते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मीन्स जिस प्लेन में भी अगर एरिया है तो एरिया क्या होता है, इधर टू डायमेंशनल फिगर होती है हमारे पास एरिया में, टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल अगर है तो उसकी एरिया हो गया, और टू डायमेंशनल होने के कारण उसका कोई प्लेन भी होगा। मीन्स से दैट अगर आप इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करते हैं और मैं कहूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और यहाँ कोई आप एरिया लेते हैं, तो इस एरिया की कोई एक लेंथ है, दूसरी ब्रेथ है, तो इस एरिया भी होगा इसका कुछ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तब आप तो जब इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से आप निकाल सकते हो, तो इसका प्लेन भी है, किस प्लेन में है ये एरिया? एक्स वाई प्लेन में। तो किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होगी, जिस प्लेन में वो एरिया है, उस प्लेन के परपेंडिकुलरली, जैसे हमने ए क्रॉस बी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जब भी हमने दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है? ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप is a normal unit vector which has magnitude equal to 1 unit and direction perpendicular to the plane of vector A and vector B. That is the idea. That is the idea. तो आपको क्या करना है कि अगर हमारा सपोज इन्फिनिटिजिबल एरिया को थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन्फिनिटिजिबल एरिया है ये हमारा, ये वाला, तो इसका अगर प्लेन चाहे इसका कोई भी हो, अगर इन्फिनिटिजिबल एरिया हमारा ये है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इन्फिनिटिजिबल एरिया इस तरफ है तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, और किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी। ये तीनों फिगर आपको बनाई गई हैं, यहाँ देखिए। अगर डायरेक्शन ये है तो जो अगर एरिया इस तरह से है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया की इस तरह दिखाएंगे। अगर हमारे पास एरिया ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी, और किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है तो इस तरह से दिखाएंगे। अगर इस एरिया को हम इन्फिनिटिजिबल एरिया को ds से रिप्रेजेंट कर रहे माना, तो मैंने बताया कि हम ds वेक्टर कहेंगे, वेक्टर, चूंकि एरिया हमारा टॉपिक है एरिया एज अ वेक्टर। तो अगर ds एक वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, तो मैग्नीट्यूड किससे आ जाएगा? ds से, ठीक है। और डायरेक्शन किससे आएगी? ds कैप से। अब ds कैसे मेजर करेंगे आप? आपके पास अगर कोई भी एरिया है तो उसकी लेंथ या ब्रेथ कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन क्या होगी? जिस प्लेन में ये एरिया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड या इनवर्ड, जैसे भी आप। राइट हैंड रूल चूंकि हम जनरली यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जनरली दिस डायरेक्शन मोर जनरली इज ऑलवेज आउटवर्ड। ओके, सो दिस इज द आइडिया। अगर हम ये तो हमें एक प्लेन एरियाज थे, अगर हम किसी स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में जो ये हमारे पास स्फीयर है से, ठीक है, ये हमारे पास स्फीयर है।
अब स्फीयर में चूंकि ये जो सरफेस है कॉर्ड सरफेस है, प्लेन सरफेस तो है नहीं, तो इसमें हम कैसे एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इसकी सरफेस पे एक छोटा सा इन्फ्लेटिजिबल एरिया ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये छोटा सा इन्फ्लेटिजिबल एरिया है और इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये जो एरो है ये हमें इस एरिया का सिग्निफिकेंट मीनिंग देगा कि ये एरिया है क्या। यानी कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोस्टेट आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो या वेक्टर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो अगर आपके पास कोई भी इन्फिनिटिजिबल एरिया है, चाहे वो सरफेस एरिया है, चाहे वो प्लेन एरिया है, वट, तो आपको क्या करना है कि एरिया की जो डायरेक्शन है अगर वो आपको पता लग गई तो आप उस एरिया के बारे में बाकी चीज़ें को डिस्क्राइब कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि एरिया जो इन्फिनिटिजिबल आप माने वो केवल यही हो, यहाँ भी आप मान सकते हैं। तो अगर यहाँ हमारे पास ये इन्फिनिटिजिबल एरिया है, ठीक है, तो आप इससे बाहर की ओर ऐसे, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? ds कैप। मीन्स जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली, ओके। तो दिस इज द आइडिया। अगर आपके पास प्लेन सरफेस है तो डायरेक्शन को आप इस तरह से कंक्लूड करते हैं, और अगर आपके पास कोई भी स्फीयर टाइप कोई फिगर है तो उसके एरिया को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। So we can conclude that an infinitesimal area can be considered as a vector. Meanwhile, this idea can be applied for the surface which are not an infinitesimal area. ये जरूरी नहीं है कि आप केवल इन्हें इन्फिनिटिजिबल एरिया, इस आइडिया को केवल इन्फिनिटिजिबल एरिया को ही लिए डिस्क्राइब करें। ये एरिया, ये जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये किसी भी एरिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा है कितना। पर हमें चूंकि आगे पढ़ के हमें इलेक्ट्रोस्टेट में गॉस लॉ या स्टोक्स थ्योरम वगैरह पढ़नी है, तो वहाँ ये आइडिया हमें काम आएगा। ds मीन्स एरिया एज ए वेक्टर, वहाँ हमें हेल्प करेगा। तो ग्रैब दिस कंसेप्ट। बहुत सारी जो मैंने बोला वही लिखा है यहाँ की इलेक्ट्रोस्टेट में हम गॉसियस थ्योरम, गॉसियस लॉ को यूज़ करते हैं और उसकी एप्लीकेशन भी करेंगे वहाँ, तो वहाँ आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर कंसेप्ट विच इज़ नोन एज फ्लक्स। ओके, दिस वन, व्हाट इज फ्लक्स? ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं 12th लेवल पे जरूर पढ़ा होगा। 12th लेवल पे कहीं ना कहीं आपने ये फ्लक्स के ये फिगर भी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। ये वाली ये फिगर देखिए, तो ये फिगर क्या दिखा रही है हमें? ये एक्चुअली जो फ्लक्स हम वर्ड पढ़ते हैं, ये गॉसियस लॉ को जब हम प्रूफ करते हैं या फिर इसके एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो वहाँ ये फिगर हमें देखने को मिलती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो किसी क्लोज पाथ से, किसी क्लोज सरफेस से होकर जा रही हैं। तो गॉसियस लॉ ये कहता है कि इन फील्ड लाइंस, that is number of electric field line passing perpendicularly to a closed surface is known as flux। यानी इस closed surface से, ये जो मैंने बनाया है, ये इस closed surface से perpendicularly ऐसे जितनी फील्ड लाइंस होकर गुजरेंगी वो क्या कहलाएंगी? फ्लक्स। एंड दिस आइडिया is given by use in Gauss theorem number of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चूँकि फील्ड लाइंस के बारे में ये कहा जाता है कि वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हैं और निगेटिव चार्ज तक जाती हैं। नेवर coincide with each other, never die out in the path, बस पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव तक पहुंच जाती है। तो अगर आप इन फ्लक्स लाइन के बीच में कोई एक क्लोज्ड सरफेस रख दें तो ये फ्लक्स लाइन यहाँ से आएंगी इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन तक जाएंगी। तो इस क्लोज्ड सरफेस से जितनी फ्लक्स लाइन होकर गुजरेंगी परपेंडिकुलरली, वो क्या कहलाएगा? इस एरिया का
फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जनरल आइडिया आप यूज कर सकते हैं। मोर जनरली और अच्छे कॉन्सेप्ट, अगर आर्चरी का गेम आपने देखा होगा, आर्चरी के गेम में हमारे पास क्या होता है, एक धनुष होता है, एक टारगेट होता है, तो टारगेट पे हमें वो जो एरोज हैं वो मारने पड़ते हैं। तो जितने ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा आर्चर होगा वो इन सभी एरोज को टारगेट पे लगाएगा, लेकिन कुछ इतने अच्छे नहीं होते, इतने स्पेशलाइज्ड प्लेयर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, मिस कर देते हैं टारगेट को। तो फ्लक्स क्या हुआ, ये जो टारगेट में एरोज लगे ये क्या है, फ्लक्स ऑफ एरो। तो ये जरूरी नहीं है कि आप केवल फ्लक्स को ऐसा ट्रीट करें कि ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हो सकता है, या ये केवल एक फिजिक्स से जुड़ी नहीं, फ्लक्स ऐसा नहीं है। मोर जनरलाइजेशन, इसका और जनरलाइजेशन कर देते हैं। देखिए, अगर इसका जनरलाइजेशन करें तो इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए सपोज करो आपके यहाँ पास में एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये टूरिस्ट स्पॉट है चोपता। ठीक है, और चोपता क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, तो चोपता अगर टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो इस कंसेप्ट को, जो फ्लक्स का कंसेप्ट है, अब हम कहाँ कनेक्ट करने जा रहे हैं, डाइवर्जेंस के साथ। ठीक है, अब वहाँ मान लीजिए किसी स्पेशल डे पे, किसी पर्टिकुलर डेट पे 1000 टूरिस्ट आते हैं, तो ये क्या है, फ्लक्स है ये। किसी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज करो चोपता में 5x5 किलोमीटर एरिया में एक एरिया हुआ हमारे पास, उसमें किसी पर्टिकुलर डे पे 1000 टूरिस्ट आते हैं, तो दैट इज द फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट। ओके, 3 एग्जाम्पल I have given to you. First is electric field lines, second is archery game, and now third. This is the most general concept. इससे आप समझ जाएंगे। आप ये समझिए कि चोपता में अगर रोज किसी पर्टिकुलर डेट पे 1000 टूरिस्ट आते हैं, ओके, तो ये हुआ फ्लक्स, दैट इज कमिंग टू द चोपता। और अगर 1000 टूरिस्ट आते हैं और सेम डेट पे 1000 टूरिस्ट ही घूम के वहां से निकल जाते हैं, तो जो चोपता है वो इस कंडीशन में एक जीरो डाइवर्जेंस का सोर्स है। यहां ना तो कुछ बैलेंस हुआ, जितना आया उतना ही गया। ओके, नाउ अगर चोपता में किसी पर्टिकुलर डेट पे 1000 टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, और वहां से जाने वाले टूरिस्ट उस पर्टिकुलर डेट पे 800 है, मीन्स 800 हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 200 टूरिस्ट ज़्यादा बचे उस दिन, उस पर्टिकुलर डेट पे। तो ये जो उस दिन है चोपता, ये क्या है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सोर्स है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है उस समय। और अगर तीसरी कंडीशन में किसी दिन ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर डेट पे कि 800 टूरिस्ट आते हैं चोपता किसी पर्टिकुलर डेट पे और 1000 वहां से चले जाते हैं, तो उस समय जो चोपता है वो क्या है, एक निगेटिव सोर्स ऑफ डाइवर्जेंस है। समझ रहे, फ्लक्स 800 आया, गया कितना, 1000 माइनस 200, माइनस डाइवर्जेंस। 1000 आए, 1000 चले गए, फ्लक्स कितना आया, 1000, फ्लक्स कितना गया, 1000, सोर्स ऑफ जीरो डाइवर्जेंस। नेक्स्ट 1000 आए, 800 चले गए, कितने बचे, 200, सोर्स ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। दिस इज द मोस्ट जनरल एग्जाम्पल फॉर यू। और थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इस आइडिया को जनरलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई नल है और नल से
किसी बर्तन में पानी जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी बर्तन में पानी जा रहा है नल से और उस बर्तन की तली में एक छेद है, तो वहां से पानी निकल रहा है। तो जहां से पानी कमिंग है, इनकमिंग हो रही है जहां से, वो क्या है, सोर्स ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और जहां से जा रहा है मीन्स यहां से, ये क्या है, सोर्स ऑफ निगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हैं इस बात को, अगर इक्वल अमाउंट आती है मीन्स जितना पानी यहां से आ रहा है उतना ही पानी यहां से निकल जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक सोर्स ऑफ जीरो डाइवर्जेंस। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ज्यादा पानी यहां से आया, कम पानी यहां से गया, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और ऐसा तीसरी कंडीशन हो सकती है कि यहां से कम पानी आया और यहां से ज्यादा चला गया, तो ये क्या होगा तीसरी कंडीशन में, सोर्स ऑफ निगेटिव डाइवर्जेंस। तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। ये जो वाटर वाला एग्जाम्पल है, ये फ्लक्स को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि देखिए फ्लक्स में क्या होना चाहिए कि जो जो जिस जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के फ्लक्स के विषय में आप डिस्कस कर रहे हैं, वो वही जनरेट होना चाहिए, मीन्स वो सोर्स ऑफ जनरेशन होना चाहिए। जैसे हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यहीं से फील्ड लाइंस निकलती हैं, यहां तक जाती हैं ऐसे इस डायरेक्शन, फिर निकलती हैं, फिर यहां तक जाती हैं, फिर यहां से निकलेंगी, यहां तक जाएंगी ऐसे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि ये सोर्स ऑफ जनरेशन है, यहाँ ये सोर्स ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ये सोर्स ऑफ निगेटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है। और फ्लक्स क्या हुआ, अगर इस डाइवर्जेंस के बीच में कोई एक एरिया आप रख दे, तो इस एरिया से परपेंडिकुलरली जितनी फील्ड लाइंस होके गुजरेंगी वो क्या होगा, फ्लक्स। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी डाइवर्जेंस को समझने के। तो आप जनरलाइज ये कर सकते हैं कि अगर कहीं से कोई चीज़ निकल रही है तो दैट इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। कोई चीज़ कहीं समाहित हो रही है, नीचे जा रही है, तो दैट इज द सोर्स ऑफ निगेटिव डाइवर्जेंस। और इक्वल अमाउंट निकल रही है, इक्वल अमाउंट नीचे जा रही है, तो फिर सोर्स ऑफ जीरो डाइवर्जेंस। यू कैन इजिली अंडरस्टूड दैट। नाउ आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आप डेल ले लें, किसका, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, मीन्स डेल डॉट ई, दिस इज द वेक्टर ऑपरेटर, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये जीरो आता है, ठीक है, तो ये जो फील्ड्स हैं जिनके बारे में ऐसा होता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा होता है जिनके लिए जिसकी डाइवर्जेंस जीरो हो, तो इन फील्ड्स को हम सोलेनॉइड या फिर डाइवर्जन लेस फील्ड कहते हैं। ऐसा सब फील्ड्स के साथ नहीं होता, केवल कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के साथ ऐसा होता है जिनकी डाइवर्जेंस क्या हो, जीरो। ऐसे फील्ड्स जिनकी डाइवर्जेंस जीरो हो, ऐसे फील्ड्स को हम डाइवर्जन लेस फील्ड या फिर सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट in this lecture we are discussing about the concept of divergence mathematically and physically. Second one we have stressed about is area as a vector, and third one you are very familiar, you are very clear now about that, is flux. What is flux? Okay, so now this is the conclusion, and here I quit, meeting you in the next one.